motion is basically, let's suppose this is object. This object does not change its position. Positions means na left na right na कोई movement. With respect to WRT means with respect to time. Then we say body is in rest. If it change its position with respect to time, if it change position with respect to time, then body is said to be in motion. The basic difference between rest and motion is, in motion body change its position with respect to time, and in rest it does not change its position with respect to time. Types of motion. There are three types of motion: one-dimensional motion, two-dimensional, and three-dimensional motion. In one-dimensional motion, particle moves in a single axis, in one axis. In two dimension, in two axes, and three dimension in three axes. Let this is coordinate system x and y. If particle moves in x axis, this is block and this is moving in only in x axis, then body is in one dimensional motion. If it moves in this direction, it moves in x and y, both directions. Then this is in two dimension. And let's suppose this is x axis, this is y axis, and this is z axis. This is a particle move कर रहा है x y ऊपर नीचे इस तरीके से move कर रहा है, तो ये x y और z तीनों ही एक्सिस में मूव कर रहा है. तो इस केस में जो पार्टिकल होगा वो कौन से मोशन में होगा? थ्री डायमेंशन. तो टाइप्स ऑफ मोशन में तीन टाइप के मोशन है: वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन. जो मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन जब हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन. के डायमेंशन के बेसिस पे आप मोशन को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो? तो अपन तीन पार्ट में कर सकते हैं: वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन. इन वन डायमेंशन along one axis, two dimension along in y axis, and three dimension along in x, y and z. In both इसमें थ्री एक्सिस. ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका? मोशन का, रेस्ट का और टाइप्स ऑफ मोशन का. अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, तो वो रेस्ट में है. और अगर वो पोजीशन चेंज कर रही है तो वो किसमें है? मोशन में है. और मोशन के तीन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन: वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन. In one dimension it moves along one axis, in two dimension along two axis, and in three dimension along three axis. This is the basic of motion and rest. Next, again types of motion. The simple type. There are two types of motion. First one is uniform motion, and second one is non-uniform motion. Uniform motion and non-uniform motion, simple types of motion. In uniform motion, let's suppose this is A point and this is B point. A और B point है. अब इसको अपन इक्वली तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया. इतनी ये डिस्टेंस, दिस वन एंड दिस वन, s/3 डिस्टेंस, दिस इज आल्सो s/3 एंड दिस इज s/3. अब एक पार्टिकल है जो A से B तक जाता है. अब A से B जाएगा तो मान लेते हैं अपने C है और ये क्या है? D है. तो A से C तक जाएगा, इक्वल डिस्टेंस है. C से D में जाएगा, इक्वल डिस्टेंस. और D से B में जाएगा, इक्वल डिस्टेंस. अगर मान लो यहाँ पे पार्टिकल को A से C तक जाने में टाइम t1 लग रहा है, C से D जाने में टाइम t2 लग रहा है, और D से B जाने में टाइम कितना लग रहा है? t3.
अब तीनों में ही, तीनों पार्ट में, ए से सी में, सी से डी में और डी से बी में इक्वल डिस्टेंस है। और अगर टाइम जो है t1, t2 और t3 अगर तीनों टाइम सेम आ रहे हैं तो बॉडी कौन से मोशन में होगी? यूनिफॉर्म मोशन में। इफ t1 is equals to t2 is equals to t3, whether given is ac is equals to cd is equals to d. In non-uniform motion time is not equal. बेसिक डिफरेंस इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? इक्वल बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, while in non uniform motion unequal time with in equal distance. This is the basic difference between uniform motion and non uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? अपन जनरली ये भी कह सकते हैं, आगे जाके अपन पढ़ेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जिसमें वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ये अपन को जब जैसे टाइम के साथ अपन क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे पता लगता जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहेगी? वेरिएबल। This is the difference between types of uniform motion and non-uniform motion. In uniform motion, equal body travels equal distance in equal time interval, and in non-uniform motion, unequal time in equal distance. ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब अपन आते हैं फर्स्ट टॉपिक जो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। फर्स्ट इज डिस्टेंस। Distance is what? Distance is basically length of path. Distance is basically length of path traveled by an object. Distance is basically length of path traveled by an object. Length of path traveled by an object. यूनिट डिस्टेंस, यूनिट इन एमकेएस सिस्टम यूनिट क्या होगी? मीटर, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, एंड एफपीएस सिस्टम में क्या होगी? फीट। एंड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज एल। दिस इज द बेसिक ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज basically shortest distance between two points. क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सेम यूनिट, सेम, एंड डायमेंशन और आल्सो सेम एज डायमेंशन। अब ये हो गए सिंपल डेफिनेशंस जो अपन 9-10 में पढ़ते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन एकदम सिंपल है। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ पाथ है जो अब कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है उसके जो जितना वो ट्रेवल कर रही है, लेंथ ऑफ पाथ लिखा है। क्या लिखा है अपन ने? लेंथ ऑफ पाथ मतलब जितनी बॉडी चल रही है वो क्या है? बेसिकली उसकी डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी शॉर्टकट, वो क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब इनमें और भी डिफरेंस देखते हैं अपन एग्जांपल्स कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ। जैसे मान लो ये मेरे पास एक ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है अपने पास? बी पॉइंट है। अब एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है, अब ए से बी सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है उसकी इच्छा है घूम फिर के जाने की, वो घूम फिर के इस तरह के जा रहा है। हो सकता है इधर से घूम फिर के जा रहा है, हो सकता है ऐसे घूम फिर के जा रहा है, ठीक है। अब ये इसके पास चार रास्ते हैं। कितने पाथ हैं? चार, 1 2 3 एंड 4। अब ए से बी तक जाने में उसको कितने रास्ते मिले? चार रास्ते। क्या चार ही रास्ते हैं या बहुत सारे रास्ते हैं? तो ए से बी, जैसे सपोज मान लो आप अपने घर से, सपोज आप स्कूल जा रहे हैं, ये आपका घर है और ये आपकी स्कूल है, ठीक है। आप घर से स्कूल जा रहे हो तो घर से स्कूल जाने के आपके पास कितने रास्ते हैं? बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं,
ठीक है, आप सीधे से चले जाओ, घूम फिर के चले जाओ, पड़ोस वाले गली से घूम फिर के चले जाओ, ठीक है, कहीं और जाके फिर चले जाओ, ठीक है। तो 2 पॉइंट के बीच में घर है आपका और ये स्कूल है, इन दोनों के बीच में आप अगर जाते हो, घर से आप अगर स्कूल जा रहे हो तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं, मतलब 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, यानी डिस्टेंस हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं इसकी बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। डिस्टेंस की कितनी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है 2 पॉइंट के बीच में। जैसे ए से बी जा रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने रास्ते बताए 1 2 3 4, जरूरी नहीं कि 4 रास्ते ही हो, इसके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अब सपोज ये फर्स्ट रास्ते जा रहा है, इसका डिस्टेंस मान लिया d1, इसका डिस्टेंस d4, इसका d2 और इसका d3, ये 4 डिस्टेंस मैंने लिए, d1 d2 और d3 और d4, ये चारों की डिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि डिस्टेंस बेसिकली है क्या, लेंथ ऑफ पाथ, कि आप कितना चल रहे हो। ए से बी जा रहा हूं तो सीधे से चल रहा हूं, सेकंड वाले रास्ते से जा रहा हूं तो घूम फिर के जा रहा हूं, ज्यादा डिस्टेंस है, तीसरे वाले से जा रहा हूं तो और घूम फिर के जा रहा हूं तो और ज्यादा डिस्टेंस है, फोर्थ वाले में अलग डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है 2 पॉइंट के बीच में, वो कितनी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। व्हाइल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये शॉर्टकट है, क्या है ये, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या होगा, अब आपके घर से और आपके स्कूल आपको जाना है, ठीक है, आप लेट हो रहे हो तो हमेशा शॉर्टकट लोगे, और शॉर्टकट एक होते हैं कि बहुत सारे होते हैं, शॉर्टकट एक ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, शॉर्टकट ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, बिटवीन 2 पॉइंट्स हैव यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू का मतलब कि एक ही वैल्यू होगी 2 पॉइंट के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट है यूनिक वैल्यूज बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट की केवल एक ही वैल्यू होगी, जबकि डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 2 पॉइंट्स के बीच में उसको कितनी वैल्यू रख सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकता है। तो बेसिक डिफरेंस है, ये फर्स्ट डिफरेंस है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आगे और भी अपन डिफरेंस की बात करें कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट डिफरेंस तो है अपना, डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ, डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ। अभी फर्स्ट एग्जांपल हो गया, इस एग्जांपल से मैंने एक पॉइंट निकाले, तुम चाहो तो डायरेक्ट क्या कर लो, तुम चाहो तो एग्जांपल से आ जाओ। अब सपोज आप अपने घर से निकले, ठीक है, ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका क्या है, क्या चलो स्कूल ही मान लेते हैं, ये आपका स्कूल है, घर से गए आप स्कूल, ठीक है। अब घर से आप स्कूल की तरफ जा रहे हो, अब सपोज आपकी लंच हुई या फिर मान छुट्टी हो गई आपकी, आप स्कूल से घर आ गए, ठीक है, आप स्कूल से कहाँ आ रहे हो, घर की तरफ इधर आ रहे हो, रास्ते में ये एक पताशे वाला मिल गया तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए, चाट पकौड़े की दुकान है, ठीक है। तो आप स्कूल से घर आए, रास्ते में कौन मिल गया, चाट पकौड़ी वाला, ठीक है। अब चाट पकौड़ी वाला मिल गया, तुमने चाट पकौड़ी खाई, फिर तुम्हें कुछ याद आया कि तुम कुछ भूल आए हो स्कूल के अंदर, तो तुम यहाँ से और यहाँ तक चले, फिर वापस तुम गलती से स्कूल जा रहे हो, ठीक है। तो इस केस में जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये कौन सा पॉइंट है, सी। मैं 3 कंडीशन ले रहा हूँ, पहले मैं स्कूल से कहाँ पहुंचा, बी पॉइंट पर, बी से मैं वापस कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, तो मिड पे कोई मैंने एक पॉइंट लिया, जनरल पॉइंट सी। तो जब मैं ए से बी गया और बी से सी गया, तो टाइम जो था वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, टाइम किसी का ये रुकता नहीं है। तो ए से बी मैं जा रहा हूँ, तो ए से बी तक मैं गया, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, ए से बी जा रहा हूँ, ए से बी जाने पे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब डिस्टेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज, डिस्टेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। जब आप चाट की दुकान पे पहुंच गए तो आप खड़े हो गए, यानी आप चल नहीं रहे हो, अब आप चल नहीं रहे हो, आप खड़े हुए हो, यानी टाइम तो फिर भी बढ़ रहा है, टाइम तो फिर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब टाइम फिर इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, तुम खड़े खड़े पता खा रहे हो, कुछ भी तुम चाट पकौड़ी को खा रहे हो, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। यानी अगर टाइम के साथ मैं देखूं तो डिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है, डिस्टेंस क्या रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। लेकिन अगर मैं बी से सी जा रहा हूं तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा,
इंक्रीज होगा, इट विल इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस की डेफिनेशन को अगर मैं देखता हूं तो डिस्टेंस की डेफिनेशन है लेंथ ऑफ पाथ। तो मैं ए से बी गया, बी से सी जा रहा हूं, तो मैं ये रास्ते ये चल रहा हूं, तो मतलब जो लेंथ है मेरे पाथ की, जो मैं चल चुका हूं, वो इंक्रीज हो रही है। तो मतलब इस केस में भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि कभी भी डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज नहीं होगी। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस या तो इंक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। इट विल नेवर डिक्रीज, बिकॉज डिस्टेंस इज बेसिकली कि आप कितना चल चुके हो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, अगर अपन वो डिस्टेंस की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो डिस्टेंस विल इंक्रीज और कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में या तो इंक्रीज होगी या फिर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इट नेवर बी डिक्रीज, इट नेवर बी डिक्रीज, कभी भी ये डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपन अपने एग्जांपल पे। मैं ए से बी गया, बी से सी आया, तो मेरे को इतना पता लग गया कि मैं ए से बी जा रहा हूँ और बी से सी जा रहा हूँ, तो टाइम के साथ मेरे लेंथ ऑफ पाथ है वो मेरा इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ शॉर्टकट की। सपोज मैं ए से बी गया, ए से बी में जा रहा हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट अब देखते हैं। जब मैं ए टू बी गया हूँ, ए से बी जा रहे हैं अपन, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, और टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर आपको नहीं लगता तो आप देख लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ई पॉइंट ले लिया और एक एफ पॉइंट ले लिया। पहले मैं ई पे था, अब कहाँ पे आ गया, एफ पे। तो पहले जब मैं ई से ए था तो ये डिस्टेंस था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट। और ए से एफ तक के लिए भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ए से एफ तक के लिए भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो जब ई से एफ गया तो टाइम इंक्रीज हो, टाइम इंक्रीज हो तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है। यानी जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज। अब मैं जाके वहां पे आराम से खड़े खड़े चाट पकौड़े खा रहा हूं, अब वो मैं खा रहा हूं तो टाइम तो बढ़ रहा है कंटीन्यूअसली, लेकिन उस टाइम डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बी पॉइंट पे ही हूं। तो टाइम इंक्रीज होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या रह सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन जब मैं उस चाट पकौड़े वाली शॉप से वापस स्कूल की तरफ जाऊंगा, पहले मैं बी पे था, अब मैं कहां पे आ गया, सी पे। तो अब ऑब्जर्व करो कि ए के रेस्पेक्ट में ए से बी की डिस्प्लेसमेंट ये है। जब मैं सी पॉइंट पे पूछा तो डिस्प्लेसमेंट यही हो गई, इतनी ही रह गई। यानी अब एग्जांपल से मेरे को देख के पता लग रहा है कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, टाइम के साथ डिक्रीज। तो डिस्टेंस में क्या था, फिर डिस्टेंस विल इंक्रीज और कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट नेवर विल डिक्रीज। व्हाइल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट विल इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। तो ये एक अगेन सेकंड डिफरेंस आ गया किसके बीच में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दो डिफरेंस हो चुके हैं अपने पास। फर्स्ट डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सेकंड तो बिल्कुल सिंपल है, एग्जांपल से आप याद रख सकते हो, बाकी चाहो तो आप रट भी सकते हैं अपन इनको, लेकिन एग्जांपल से अपन इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कहां से आए और क्यों आए और कैसे आए। तो ये हो गया आपका सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, जो डिस्टेंस है इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो डिस्टेंस जो है वो आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी आपकी, स्केलर क्वांटिटी। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका केवल केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिधर मेरी बॉडी जा रही है उधर ही किसकी डायरेक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे तीन डिफरेंस है किसके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये है लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, और ये दे रखा है आपको टाइम। अब ये ग्राफ चेक करना है कि ग्राफ सही है या फिर गलत है, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ पाथ इज बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस से कहता है कि ये कभी भी डिक्रीज नहीं होगा टाइम के साथ। अब इस ग्राफ में अगर पार्टीशन करता हूं तो ओ से ए तक, ओ से ए तक जा रहा हूं तो लेंथ इंक्रीज हो रही है,
ए से मैं बी जा रहा हूं तो लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। अब लेंथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ए से बी वाला पार्टीशन वाला ग्राफ क्या है, गलत, मतलब ये ग्राफ क्या है, रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे अब मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया, ये लो, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। तो ये ग्राफ आपका क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। जैसे इस पॉइंट पे देखो हल्का सा ये स्लोप स्ट्रेट लाइन सी है, तो यहाँ पे क्या है, वो कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ क्या है, करेक्ट है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह में तुम्हें लेंथ ऑफ पाथ देता तो ये ग्राफ क्या हो जाता, रॉन्ग। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है किसके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और दूसरी चीज, डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ पाथ है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉजिटिव होगी हमेशा। और दो पॉइंट के बीच में कभी भी डिस्टेंस जो होगी वो जीरो नहीं होगी। दो पॉइंट के बीच में कभी भी डिस्टेंस क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, क्योंकि दो पॉइंट है ए और बी है, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कैसे हो सकता है वो देखेंगे अपन, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। अब देखो इसके दो क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी के लिए। ये मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, कौन सा ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है। एक पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ और इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो है r। ठीक है, ट्रैक की रेडियस कितनी है, r। मैं ए से स्टार्ट हुआ और घूम फिर के वापस कहां पहुंच गया, ए के पास। ठीक है, मेरे को इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, चलो पार्टीशन लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, एक पार्टिकल है या एक बॉडी है जो क्या कर रही है, ए से स्टार्ट होकर घूम फिर के वापस कहां पहुंच रही है, ए पर ही पहुंच रही है। ठीक है, और मेरे को निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज बेसिकली वो होता है जो अपन कितना चल रहे हैं। अब तुम सर्कुलर पाथ पे चलोगे, यानी ये डिस्टेंस चाहिए, और दिस इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई r। तो ये हो गया डिस्टेंस। पार्टिकल कहां से कहां पड़ा, ए से वापस घूम फिर के कहां आ रहा है, ए टू ए। ठीक है, अब ये तो हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज व्हाट, लेंथ ऑफ पाथ। मैं ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी और डी से ए, वापस यहां पहुंच गया। और यहां पहुंचने के बाद मेरे को लगा क्या हो गया, अब मैंने कितना मैं चला वही क्या है मेरी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज 2 पाई r। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टकट, यानी ए से ए, यहां से स्टार्ट किया वापस यहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अब इस केस में देखो डिस्टेंस 0 नहीं था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो डिस्टेंस कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव तीनों चीज हो सकती है। अब अगर मैं इसमें ए से ए, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, अगर अपन इसको कहते हैं, इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं। ए से मैं जा रहा हूं बी के पास, कहां से कहां जा रहा हूं, ए से बी के पास। अगर मैं ए से बी के पास जाता हूं तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने हैं। ए से बी जा रहा हूं तो मैं डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए अपन को, डिस्प्लेसमेंट। अब ए से बी क्या है, तो ए से बी यहां से ये चला, तो दिस इज द क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल। क्वार्टर पार्ट मींस 2 पाई r टोटल है, इसका क्वार्टर पार्ट मतलब 1/4। तो डिस्टेंस कितनी होगा आपकी, 1/4 इनटू 2 पाई r। क्योंकि देखो ये चार पार्टीशन 1 2 3 4, तो इसका 1/4 चल रहा है, तो पूरा कितना है 2 पाई r। इसका कितना चाहिए, 1/4 पार्ट चाहिए, तो 1/4 इनटू 2 पाई r। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डायरेक्ट निकालना है, यहां से ए से बी तक की डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो आप देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये r, ये r, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, एंड दिस इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज r² प्लस
आर स्क्वायर। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 ऑफ आर। तो ये हो गया आपका ए से बी तक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो एक गिवन क्वेश्चन आर दे रखा है सेंटीमीटर में, तब सेंटीमीटर लगा देंगे अपन। अगर वो मीटर में दे रखा हो तो मीटर लगा देंगे, वो किलोमीटर में दे रखा हो तो किलोमीटर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। क्योंकि अपन जो डिफरेंस किया था अपन ने उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो उस एग्जांपल से अपन अच्छे से देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। इट नेवर बी 0 बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस। अब आगे अपन इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्केलर और